Good morning, students. So we will start our today's class in a subject of political science, and today we read the book Political Theory, and the chapter name is Freedom. In previous classes, we learned in a chapter regarding Mr. Mandela and Gandhi's view, Aung San Suu Kyi. These are big names of world politics, and they are also fighter for their own principles to save and against to the oppressive governments. They are face lots of punishments for with these types when there are government rules in their countries. Now we are moved to our next topic, which is what is freedom. In previous classes, I hope you all are understand for that why the freedom is very necessary and what is the importance of freedom. When you learn the life sketch of Mr. Mandela, when you learn the life sketch of Aung San Suu Kyi, then after you understood what is the meaning of freedom, how their own country's government oppress Mr. Mandela's or Miss Aung San Suu Kyi's life and oppress their values and oppress their principles, and after that these big fighters, I am talking about Mr. Mandela and Aung San, these big fighters raise their voices, face a big punishment, but they achieve their goal and they are finally successfully achieve to their principles, to finally they are very successfully achieve their values regarding the fundamental rights. So students, now we are talking to the meaning of freedom. Generally we are understood the meaning of freedom. It means our country got independence in 15 August 1947, but it is a very simple thinking. In as a political science student, you must know the freedom is a fundamental issue in a democratic country's people. First, in a topic, the first line, which is written a simple answer to the questions what is freedom, is absence of constraint. Constraint means foundations. It means lots of pressures which is created by society, which is created by other person. lots of foundations. So that is feel for you like and pressure and bondage personality and bondage situations. In simple way, अगर आप, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट की बात की जा रही है, बंधन की बात की जा रही है, बाउंडेशंस की बात की जा रही है, स्वतंत्रता। अगर आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से बाउंडेशंस लगा दिए जाए
प्रतिबंध लगा दिए जाए कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते, आप ये चीज़ें खा नहीं सकते, आप इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, और फिर कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा हो सकता है। सीधी सी बात है, जब तक हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध रहती है तो हमको उसका वैल्यू समझ में नहीं आता। आज इन मुद्दों को अगर हम पढ़ रहे हैं कि फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो बहुत ही लाइटली ले लिया जाता है इन चीज़ों को कि अरे स्वतंत्रता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा जानते हैं ये वैसी बातें नहीं हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें बहुत गहराई, बहुत डीपनेस ली हुई हैं। आप सिर्फ ये महसूस करिए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपको वेस्टर्न ड्रेसेस या एक खास प्रकार का ड्रेस पहनने को बाध्य किया जाए, एक खास प्रकार की विचारधारा, एक खास प्रकार का फैशन फॉलो करने को बाध्य किया जाए, आपको एजुकेशन से दूर रखा जाए, आपको विशेष प्रकार के रिलीजियस प्रैक्टिस कराई जाए। वो कोई भी देश हो सकता है। आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, निश्चित समय के बाद बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने मन मुताबिक खाना नहीं खा सकते। यानी कि तमाम प्रकार के कॉन्स्टेंट, तमाम प्रकार के प्रतिबंध आपके ऊपर लागू की जाए। फिर आप अपने जीवन को बताइए कि क्या वो जीवन कोई महत्वपूर्ण जीवन रह पाएगा, इंसानों लायक जीवन रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सारी डिस्कशंस हम लोगों ने इसलिए किया ताकि आप फ्रीडम के वैल्यू को समझ सकें, वरना ये वन लाइन आंसर है कि एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट दैट इज फ्रीडम। बट ये जो वन लाइन है ना, ये डिफाइन 2 से 3 घंटे तक किया जा सकता है। किस प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, विच टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, और क्या सारे कांस्टेंट को हटा लेना चाहिए? एक एग्जांपल और है। अब जैसे देखिए, अमेरिका को काफ़ी विकसित समाज माना जाता है, विकसित देश के साथ साथ विकसित समाज भी माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपने समाजों पे कांस्टेंट नहीं लगाते, प्रतिबंध नहीं लगाते। काफ़ी खुला समाज, काफ़ी खुला विचारधारा माना जाता है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी मानना है कि जब तक हम फंडामेंटल इश्यूज को सॉल्व नहीं करते, फंडामेंटल थिंकिंग्स के पार नहीं जाएंगे, तब तक हम देश का, समाज का और अपना विकास नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े बहुत कांस्टेंट होने भी बहुत ज़रूरी है, और वही कांस्टेंट हमें सोसाइटी लगाती है, हमारे ऊपर, हमको बाउंडेड करती है। आप तमाम प्रकार से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो कैसे सोसाइटी बाउंडेशन क्रिएट करती है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप के ऊपर से हर प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया जाए, आप किसी को कुछ भी बोल दें अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो, अगर खाने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी खा लें खाने के नाम पे, पहनने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी पहन लें। इसके लिए एक वर्ड है, मर्यादा, मोरल वैल्यूज, जो कि सोशल फ्रीडम को लिमिट करती है, उसे एक लीगल कॉन्स्टेंट में बाउंड करती है, बांधती है। तब जाकर के ये जो फ्रीडम है वो वैल्यूएबल होता है। वरना जंगल से ज़्यादा फ्रीडम कहीं पे नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव फ्रीडम है जिसकी वजह से वहाँ पे विकास नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है विकास न होने की वजह से जो जंगल का जो पशु सोसाइटी हम कह सकते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ जो है
लाखों साल के बाद भी वो उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया जितना मनुष्य ने डेवलपमेंट की है। तो आप देखिए कि एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑफ एज टॉपिक फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमने चार्ल्स डार्विन के विकास थियोरी को, इवोल्यूशन थियोरी को भी इसमें कनेक्ट किया, बायोलॉजी को भी कनेक्ट किया। मनुष्य अगर इन पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाया होता तो आज वो मनुष्य नहीं रहा होता, पशु के समान ही रहा होता। आप ये पुल, ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े थिएटर्स मैथ पढ़ने के बाद, साइंस पढ़ने के बाद नहीं बना पाते अगर हम यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट, एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हम ये नहीं जान पाते कि सोसाइटी को कैसे मोरालिटी में बांधा जा सकता है, सोसाइटी को कैसे कवर अप किया जा सकता है। हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से हमारा इस सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंस है, हमारे इन चैप्टर्स का भी इम्पोर्टेंस है, इनकी वैल्यूज़ हैं। और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फ्रीडम के बाद बहुत सारी ऐसे वैल्यूज़ आएंगी, पीस आएगा, जिसके बारे में हम जानेंगे कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है एज अ सोसाइटी में भी, और हमारे सब्जेक्ट में तो हम पढ़ेंगे ही। तो आई होप कि आपको फ्रीडम के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।